Let's continue exercise 5.2, question number 5. What does it says? Find the number of terms in each of the following APs. Number of terms. That means you have to find n. How many terms are there in this AP? Okay. So formula we know, a nth is equals to a plus n minus 1 into d. So let's take all the values first. So nth term, that is an, is 205. This is the last term, correct? So what's the value? First term, a is 7. And what we need more, that is d, common difference. And that will be a2 minus a. a2 is 13, a is 7. So 13 minus 7 is 6. तो ये आ गई हमारे पास common difference d की value. Now substitute all these values in this formula. So this will be 205 is equals to 7 plus n we have to find and d is 6. So 205 plus 7 दूसरी तरफ जाएगा, हो जाएगा minus 7. Okay. So here it is n minus 1 into 6 on right hand side. So 205 minus 7, 15 में से 7 गए 8. यहाँ रह गया 9 and 1. 198 n minus 1 into 6. So 198 divided by 6 is equals to n minus 1. तो ये हो जाएगा 2 3s are 6, 2 9s are 18, 2 9s are 18, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 3s are 9. So ये हो जाएगा 33, 1 इधर आ जाएगा is equals to n. तो n कितना आ गया? n आ गया हमारे पास 34. So how many terms are there in this AP? There are 34 terms in the given AP. Got it? Now let's move to the second sum. Here, again we have to find the number of terms. Means n find out करना है हमें यहाँ, right? तो a कितना है? a है, the first term is 18. और nth term कितना है? That is minus 47. देखो ये last term है ना, nth term. That is minus 47. और d, how you will get d? d will be 15 and half minus 18. तो ये कितना हो जाएगा? 15 2 जा 5 2 जा 10 2 1 जा 2 3 30 और प्लस 1 हो जाएगा by 2 minus 18. तो ये हो जाएगा 31 over 2 minus 18 over 1. अच्छा, अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 31 minus 2 is 16, 2 1 2, 3 36, 2. 31 minus 36 will be minus 5 over 2. ये क्या आ गया हमारा? This is our D. ठीक है, समझ में आया? Okay. Now, substitute all these values in the formula. an is equals to a plus n minus 1 into d. Nth term is minus 47, a is 18 plus n we have to find and d is minus 5 over 2. Very careful with the sign, okay? So minus 47 minus 18 is equals to n minus 1 into minus 5 over 2. So minus 47 minus 18 will be 7 7 14, 1 5, 4 5 and 6. So minus 65 is equals to n minus 1 minus 5 over 2. अच्छा, अब ये जब minus 5 over 2 दूसरी तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. इसका रेसिप्रोकेट कितना है? minus 2 over 5 is equals to n minus 1. 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 3s are 15. Minus minus क्या हो जाएगा? Plus. So we are left with 13 into 2 is equals to n minus 1. 3 2s are 6, 2 1s are 2 is equals to n minus 1. अब now n is equals to 26 plus 1. n आ गया 27. तो n क्या है? ये है number of terms. तो how many terms are there? There are 27 terms.
Now let's do the question number 6. Let's solve it. Check whether minus 150 is a term of the AP this. minus 150 मतलब कि आपको चेक करना है कि ये जो AP है इसमें कहीं 150 आता है कि नहीं आता है. दैट यू हैव टू चेक. ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमें पता है कि जहां हमें चेक करना है कि ये इसका पार्ट है कि नहीं है, ये इसका टर्म है कि नहीं है, तो व्हाट वी डू, वी टेक दिस एज द nth टर्म. गॉट इट. तो हमारे पास ए nth है. कितना है? ए nth है हमारे पास माइनस 150. और फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है 11. और डी कितना है? डी है 8 माइनस 11. तो 8 माइनस 11 कितना हो गया? -3. ठीक है, तो ऑल वैल्यूज वी हैव. नाउ सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें n फाइंड आउट करना है. ठीक है ना, चेक वेदर. अब हम n क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? आई विल टेल यू. जस्ट फाइंड द n टर्म, फर्स्ट n. ओके, so this is minus 150 is equals to 11 plus n we have to find, and d is -3. So minus 150 minus 11 is equals to n minus 1 minus 3. So it will be 1, 5 plus 1, 6, minus 161 is equals to n minus 1 into -3. तो ये कितना हो जाएगा? This will be minus 161. ये क्या हुआ? ओके, ये नीचे आ जाएगा -3 is equals to n minus 1. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, therefore n is equals to 161 प्लस ये हो जाएगा नीचे जाके 3. ये कितना हो गया? 161 प्लस 3 ओवर 3, 164 ओवर 3. अब देखो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ डेसिमल इन डेसिमल्स. ठीक है, और रिमेंबर n कैन नेवर बी नेगेटिव और इट कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन. ठीक है, अब पहले तो ये समझो कि हमने n क्यों निकाला. देखो, अगर n का कोई नंबर आ जाता, जैसे मान लो n आ गया 10, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 10 आ गया n, तो आपने ये जो an इज इक्वल्स टू 150 लिया है, इसका मतलब ये 10th टर्म थी. तो इसका मतलब यस, ये इस AP का एक टर्म है. तो तब हम बोलते कि यस, अगर ये कोई नंबर आता है n का ऐसे तो. लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ तो आ गया एक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में n कभी नहीं हो सकता. तो ये फ्रैक्शन में आया है, देयरफॉर दिस -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP. ठीक है ना, देखो जैसे आप 10th क्लास में हो, आप 10.1, 10.2, 10.3 क्लास में नहीं हो सकते, आप -10 क्लास में नहीं हो सकते. 10 क्या है? ये क्लास का नंबर है. इसी तरह ये n क्या है? ये टर्म नंबर है, ये नेगेटिव में नहीं हो सकता. गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड इट सेज फाइंड द 31st टर्म. आपको क्या फाइंड आउट करना है? 31st टर्म फाइंड आउट करनी है ऑफ एन AP whose 11th term is 38. 11th term दे रखी है कितनी? 38. एंड 16th term is 73, और 16th term क्या है? 73 है. ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी हैं, और आपको ये n यहाँ आप बोल सकते हो कि n कितना है? ये 31 है इस केस में, और यहाँ पे n 11 है, यहाँ 11 n 16 है. तो आपके पास ये जो टर्म्स हैं, इस वाली टर्म से और इस वाली कंडीशन से यू विल गेट 2 इक्वेशंस. क्या है वो इक्वेशंस? तो ये हो जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, है ना? ऐसे लिखेंगे A11 वाली टर्म, तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1. और ये जो 16th टर्म है, दिस कैन बी रिटन एज a प्लस 15d
is equals to 73. ये आ गई हमारी second equation. Now by elimination method, we will get here minus 5d and यहाँ पे आ जाएगा 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, बड़ा साइन माइनस का, तो d is equals to 35 over 5. माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 1s are 5 and 5 7s are 35. तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है d वो आ गया है 7. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड 31st टर्म, लेकिन उसके बाद तो फर्स्ट टर्म भी हमें पता होनी चाहिए. तो नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. a plus 10d is equals to 38. a plus 10, the value of d we have is 7, is equals to 38. Now a is equals to a plus 70 is equals to 38. a is equals to 38 minus 70. Therefore a is equals to minus 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3. So the first term is 32 and the common difference is d. Now we can calculate what? We can calculate a 31. तो ये हो जाएगा a plus 30d and a कितना है minus 32 plus 30 into d कितना था 7. So minus 32 plus 3 7 zeros are 0, 7 3s are 21, 210. So यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 2 गए 8 और यहाँ आ गया 7 and this will be 1. और ये आ गया क्या, this is our 31st term. Got it? Okay, fine. Now let's move to the 8th question. And it says that an AP consists of 50 terms. मतलब कि AP में कितनी terms है, 50 terms है. मतलब कि क्या क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि A1, A2, A3 ऐसे करते करते हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स हैं, 50 टर्म्स है. ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12. जो आपकी थर्ड टर्म है वो 12 है. एंड द लास्ट टर्म, जो आपकी लास्ट टर्म है, जो nth टर्म है, वो है 106. फाइंड द 29th टर्म. और आपको क्या फाइंड आउट करना है, A29. तो ये आपको फाइंड आउट करना है. अच्छा, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो, यहाँ थर्ड टर्म दे रखा है कितना 12 और यहाँ लास्ट टर्म दे रखा है और यहाँ लास्ट टर्म हमारी है A50. तो एक तरह से उन्होंने A50 तो दिया हुआ है 106 है ना. टोटल कितनी टर्म्स है 50, यानी कि A50 और यहाँ लास्ट टर्म 106 और लास्ट टर्म कितनी है हमारी A50 है. तो लास्ट टर्म इन शॉर्ट हमारे पास A50 कितनी दे रखी है उन्होंने 106. इनडायरेक्टली उन्होंने ये बता दिया. ओके, नाउ अब फिर अगर आपके पास दो टर्म्स हैं, आपके पास दो क्या, आपको क्या मिल जाएंगी, दो इक्वेशंस मिल जाएंगी. उससे आप यू कैन इजीली फाइंड आउट A29. तो चलो पहले इस वाली इक्वेशन से वी विल गेट वन इक्वेशन. दिस विल बी A plus 2D is equals to 12. और फिर इस वाली इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, A plus 49D is equals to 106. Now by elimination method change the sign और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गए, यहाँ लिखो 9 में से 2 गए 7 and 4, 47D माइनस का साइन बड़ा साइन. And here it will be 6 में से 2 गए 4 and here it will be 9, again बड़ा साइन माइनस का. तो D is equals to minus 94 over minus 47. अब यहाँ 2 से करेंगे तो 2 7 14, 2 4 8 and 9, तो ये कट गया 47 once and 47 twice. तो D is equals to 2. ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस आ गया. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A
into 2D is equals to 12. A plus 2 into 2 is equals to 12. A plus 4 is equals to 12. A is equals to 12 minus 4. Therefore, A is equals to 8. ठीक है ना, मतलब ये आ गया आपकी फर्स्ट टर्म, आपके पास आ गया कॉमन डिफरेंस D. अब नाउ यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ A29, A प्लस 28 D. और यहाँ पे A कितना आया है 8 प्लस 28 D है 2. A plus 2, 8 is 16, 2 to the 4 and 5, 56. And 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 6, 64. And A29 कितना आ गया हमारा 64. So 29th term is 69. I hope everything is getting clear, right? Okay, now let's move to question number 9. If the third and the 9th term of the AP are okay, पहले क्या दिया है थर्ड टर्म कितना दिया है 4 और नेक्स्ट दिया है 9th टर्म -8. विच टर्म ऑफ द AP इज 0. अब देखो इन्होंने फिर से कहा है विच टर्म, तो हम हमेशा क्या लेते हैं जो टर्म हमें फाइंड आउट करना होता है हम उसको nth टर्म लेते हैं. तो nth टर्म वो कौन सी nth टर्म है जो क्या होगी 0 होगी. हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है जो क्या होगी 0 होगी. ठीक है, तो इनसे इन दोनों से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी. क्या a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4. ओके, देन a प्लस 9th टर्म है ना, तो 8d इज इक्वल्स टू -8. इक्वेशन नंबर 2 by using elimination method we'll get 8 minus 2 is -6d is equals to 8, 9, 10, 11, 12. So d is equals to -12 over 6. 6 1s are 6, 6 2s are 12. So common difference कितना आ गया -2. अब common difference -2 आ गया. अब इसको इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो what we will get? We will get a plus 2 common difference है -2 is equals to 4. A 2 2s are 4 is equals to 4. A is equals to 4 plus 4. Therefore our first term is 8. अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है. Now you can get the nth term. तो an is equals to a plus n minus 1 into d. अब nth टर्म कितना आना चाहिए, कितना है 0. nth टर्म 0 है, a है 8. n हमें फाइंड आउट करना है, हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है जो कि 0 है और d कितना है -2. तो 0 इज इक्वल्स टू 8 प्लस ओके ये दोबारा लिखो गया -2. अब क्या होगा 8 दूसरी तरफ ले जाओ इज इक्वल्स टू n minus 1 -2. अब 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा. तो -8 over -2 is equals to n minus 1. Minus minus plus 2 1s are 2, 2 4s are 8. So here it will be 4 is equals to n minus 1. Therefore n कितना हो जाएगा 4 plus 1. n is equals to 5. तो that means जो फिफ्थ टर्म है आपकी वो क्या है, वो है 0. यही तो पूछा है ना विच टर्म ऑफ द AP इज 0. तो फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0. ठीक है, गॉट इट. Let's move to the next question number 10. What does it says? It says the 17th term of an AP exceeds by 7. 17th term, ध्यान से सुनो. 17th term, stay focused. जो 17th term है AP की that exceeds, अब ये एक्सीड कर रही है. 17th टर्म ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है. किससे 10th टर्म से.
कितनी? बाय 7। देखो हमने जब हम 7 ऐड करेंगे 10th टर्म में तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना? तो किसकी बननी चाहिए थी? 17 टर्म की तो बननी चाहिए थी। आप कहीं यहाँ पर 7 मत ऐड कर देना। इससे क्या होगा? 7 ऐड करने से किसकी वैल्यू बढ़ेगी? ए 10th की वैल्यू बढ़ेगी, जो कि रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कौन एक्सीड कर रहा है? 17। ए 17 एक्सीड कर रहा है। तो हम ये इस तरह लिखेंगे। अब देखो बहुत क्लियरली यहाँ से आप देख सकते हो कि जो 17th टर्म है वो एक्सीड कर गई 10th टर्म से कितना? 7 by 7. Got it? And what you have to find? You have to find the common difference D. तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर्मूला डालो। 17 टर्म का क्या हो जाएगा? A plus 16D is equals to A plus 9D plus 7. Okay? Now A and A will get cancelled. We will get 16D minus 9D is equals to 7. अब 16 में से 9 गए, 7D is equals to 7. Therefore, D is equals to 7 over 7 and the common difference D is 1. Okay? तो क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उसको समझोगे, सही वाली ये वाली इक्वेशन अगर ठीक से लिखोगे देन द क्वेश्चन इज वेरी इजी। करेक्ट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म, मतलब एन निकालना है आपको, कौन सी टर्म है इस एपी की will be 132 more than 54th term। मतलब वो कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, हमें वो वाली टर्म निकालनी है। ठीक है, समझ में आई ये बात? अच्छा चलो, इसकी मैं 2 मेथड बताती हूँ आपको। ओके, आई विल डू द सम in 2 ways, whichever you like it, whichever you find it easy, you can solve it in that way। तो पहला वो वे हम करते हैं यहाँ पे कि हमें नहीं पता कि 54th टर्म कौन सी है, क्योंकि अगर 54th टर्म पता होगी पहले तभी तो उसमें हम 132 ऐड करके पता करेंगे कि वो कौन से नंबर की टर्म है। करेक्ट? तो पहले हम 54th टर्म निकालेंगे। तो 54th टर्म कैसे निकालेंगे? A54 इज इक्वल्स टू A प्लस 53D। अब यहाँ पे निकालो A, मतलब द फर्स्ट टर्म कितनी है? 3 प्लस 53 इंटू D। D कैसे निकालेंगे? 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 इज 12, तो ये आ गया 12। अब 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 into 12, 3 2s are 6, 2 5s are 10, 1 3s are 3, 1 5s are 5, 6 3 6, 6 3 6, तो यहाँ लिख दे 6 3 6। अब आपकी A54th टर्म कौन सी आई, कितनी आई? यहाँ पे है 6 7 8 9 3 6, ये आ गई आपकी कौन सी? 54th टर्म। ओके, तो योर 54th टर्म इज 639। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट दे सेड कि A54th टर्म में, मतलब इस टर्म में जब हम 132 करेंगे तब हमारे पास एक टर्म आएगी, वो क्या है? 771। ठीक है ना? 54th टर्म में 132 ज्यादा करके हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब इसका हमें नंबर निकालना है एंड, मतलब ये कौन से नंबर पर है ये वाली टर्म, दैट वी हैव टू फाइंड। तो जब भी हमें nth टर्म फाइंड आउट करना होता है तो यू नो वी टेक इट एज दिस, एज एन nth टर्म। करेक्ट? तो यहाँ लिखो a nth इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और यहाँ पे क्या है? nth टर्म 771, यही तो है ना? 132 ज्यादा किससे? A54 से। तो दिस इज A प्लस
n हमें निकालना है और d कितना आया हमारा, d आया है 12। तो 771, a कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी थी इसकी, फर्स्ट टर्म है 3 AP की, प्लस n माइनस 1 इंटू 12। तो 771 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12। तो यहाँ पे 11 माइनस 3 इज हाउ मच, 11 माइनस 3 इज 8, और यहाँ आ गया 6, और यहाँ आ गया 7, और नीचे आ जाएगा 12, n माइनस 1। ओके, अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, कटेगा, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 8 are 16, 2 4 are 8. It will go again with 2, 2 3 are 6, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4. It will again go with 3, 3 1s are 3, 3 6 are 18, 3 4s are 12. तो ये हो गया 64 is equals to n minus 1. Therefore, n is equals to 64 plus 1. n is equals to 65. तो जो 65th टर्म है आपकी, that is more than the 54th term by 132. ठीक है, एक तो ये वे है। अच्छा, अब दूसरा थोड़ा इजी वे है, पर उसके लिए आपको इक्वेशन सही बनानी पड़ेगी। तो चलो, लेट मी एक्सप्लेन यू द सेकेंड मेथड ऑल्सो, सेकेंड वे टू सॉल्व दिस सम, और वो है, क्वेश्चन को पहले देखो, विच टर्म ऑफ एन एपी। तो मीन्स हम वो टर्म ढूंढ रहे हैं एपी की जिसको हमने ए nth टर्म ले लिया है, ठीक है, जो 132 मोर होगी, 132 मोर होगी किससे, 54th टर्म से। ये बात समझ में आई, हम ऐसी टर्म ढूंढ रहे हैं जो कि 132 ज्यादा होगी, मोर होगी किससे, 54th टर्म से। गॉट इट। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपल वे में हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज। ए nth को कैसे लिखते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 d, करेक्ट। a 54 को कैसे लिखते हैं, a प्लस 54 को मतलब 53 d प्लस 132। फर्स्ट टर्म क्या है इस सीरीज का, 3। देखो ये तो सीरीज में दे रखा है ना, ये देखो फर्स्ट टर्म इज 3, तो a की जगह पे हमने डाल दिया 3 प्लस n माइनस 1, n तो हमें निकालना है ना, ये कौन सी टर्म है, और d कितना आया हमारे पास, ये देखो d है हमारे पास 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस 53, d इज 12 प्लस 132। अब ये 3 और 3 कट गया, यहाँ रह गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 53 इंटू 12। ये देखो यहाँ हमने मल्टीप्लाई करके रखा है, तो डेट इज 636 प्लस 132। तो यहाँ आ गया n माइनस 1 12 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 6 7 8 3 3 6, 6 प्लस 1 इज 7। So n minus 1 is equals to 768 over 12. अभी हमने यहाँ पे देखो ये काटा पीटी करी है ना, 768 over 12 कितना आया हमारा, यहाँ पे ये आ गया था 64। So n is equals to 64 plus 1, n is equals to 65। तो वो हमारी 65th टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है। क्लियर, ओके। सो एनीवे, इन दोनों में से जो मेथड आपको ठीक लगे, यू कैन यूज इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, and rest of the questions of 5.2 we will continue in the next class.